So hi everyone, my name is Pankaj. So today we have another session on Spark, third session on Spark. So today is what's our agenda? So what we are going to cover today, we are especially focused on architecture part, Spark architecture, how Spark worked, and in previous session we have run some basic applications of a word count over a Spark, and we read a file from the local file system, and I had given you a task on read a file from HDFS, and we have checked how we can read the data from HDFS. So today we are basically focused on architecture part, and we can also see the installation we have done on a Linux. Even you can done on your window machine. So I'll start from installation part, like how we can implement our Spark on window, and then the third part we will do some more practical. We will today we will do a programming with Scala language, because we have a group of student having some people having a knowledge of Python, someone having a knowledge of Java, someone having a Python. So today we will focus on a Scala, how we can write a same program with Scala language. Okay, and so let's get start. So I hope if anyone having any queries, so you can share. Otherwise, we can start this session. Okay. So no one have a query. Okay. So I'm already shared my screen. So I'll start with like how we can set up a Spark on a window. Already in previous session we checked Spark on our Linux operating system, which is in GCP. So is it visible, everyone? My screen. Yes. Yes, sir. So Spark installation on Windows. So here you can see that step to install a Spark. So these are the some steps, like download the packages of Spark and WinUtils for Hadoop. The second thing, untar package and rename it and set up the environment variable. So here you can see that we can download the Spark package from this link, www.apache.org. This is a Hadoop Apache Spark package. Untar and rename the package. Once we download our package, like this package is download, first untar this package and rename it. So in my location, like downloads, in download section I have downloaded the tar package, extract the file and rename it Spark. So inside a Spark we can see the all the folders available. Then advanced settings. Go in a advanced settings. Whenever you right click on a, even you can explore from controller control panel and all control panel item and system. So once you will visit on your advanced environment variable, there is a advanced system setting. Click on this, and inside it environment variables. Click on a environment variables, and then here you can see that I have created a folder Hadoop underscore home and Spark underscore home. In Spark underscore, I'm giving a home path. Like inside a download, I have a Spark. Then system variable, there is a path. Inside a path, we given a Spark path, bin path, till bin path. I'll show you practically also. Then here you can see that we have to set up a Spark home and Hadoop home. So I have a Hadoop package also. So and then we have a environment variable. Inside a path, I have set it till bin path. Inside and Hadoop home is a bin path. So here I have a WinUtil files. So we need to set these things. Then after that, that's all. So now I'll show you. So whenever you click, then this PC go for a manage. Sorry. Sir, property. So inside a property advanced system setting. So in advanced system setting, we have an environment variables. So click on an environment variable. Here we have a home.
Then I have a Spark path, and then here you can see that in path, double click on it, so it will open. You can add your edit new whatever you want. You add and then open it. So I'll show you my folders like uh, in download session we have a Spark folder. So we have a Spark folder, and then we have a Hadoop folder. Inside Hadoop we have inside a Win we have a WinUtils file. Okay, so once you will done all these things, just open your CMD. Otherwise, restart your system also, and then type a Spark shell. A Spark shell. It will throw one error like could not locate null bin with winutil.exe in a Hadoop binary. So please check this setup also. With, I'm gonna close this one. So, still I am getting at this window error binary. Anyways, try to find debug this error. एक्चुअली में उसको सर Hadoop की बाइनरीज का पाथ नहीं मिल रहा है. हाँ वो ये कल करते करते ये भी एरर का मैंने डीबग खोज लिया था। किस चीज का? सर ये नल शो कर रहा है पाथ में, तो फोल्डर कोई नल नाम का क्रिएटेड है या कुछ प्रॉब्लम है? मतलब लोकेट नहीं कर पा रहा, तो ये एक बार डीबग कर लेना. अदरवाइज एक्चुअली में ये क्या होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि मतलब कि स्पार्क क्या है कि इसमें बहुत सारे हडूप के पैकेजेस भी डले हैं, तो हमें ये बाइंड्रीज डालनी पड़ती है. और या दूसरा रीजन हो सकता है कि स्पार्क का हम लोगों ने बहुत लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया होगा, तो कोशिश करना कि लोअर वर्जन डाउनलोड करें, उसी के अकॉर्डिंग विन यूटिल्स कैपेबल हो. अभी तो लोकेट का ही मतलब उसका इशू दे रहा है. एक मिनट. तो एक बार डिबग कर लेना, मेरे को चेक करना पड़ेगा. ये बोल रहा है डाउनलोड करो. हियर इज द गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन. सेटअप अ hadoop underscore home and on OS now need to download करिए blah blah blah. Create a folder in C drive in your and copy and set environment already we did.
ये बोल रहे हैं सी ड्राइव में एक यहाँ पे हडूप का फोल्डर बना, इसके अंदर एक पेन बना लो। इसको रीनेम करो। ये वाला पाथ कॉपी, देखो इस बार एरर नहीं है। गॉट इट? तो वो हडूप की बाइनरीज का पाथ लोकेट नहीं कर रहा था। सो जब भी आप स्पार्क का सेशन खोलते हो ना, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आप विंडो में अगर काम करते हो तो विंडो में आप लोगों को बेनिफिट मिलता है कि आप लोग यूआई को भी एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो? आप जैसे कि ये स्पार्क का एक सेशन खुला हुआ है, जस्ट वेट। सॉरी गाइस। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी एक सेशन चलता है ना तो सेशन के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि आप इसका वेब यूआई भी ट्रैक कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या मॉनिटरिंग हो रही है। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट वेब यूआई अवेलेबल इतने पे। और अगर जीसीपी में करना है तो आपको फायरवॉल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर आप ये करते हो, ओपन करते हो, तो इस सेशन में जो भी एक्टिविटी है आप उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ये देख रहे हो, अभी आपका बता रहा है कि स्पार्क की जॉब्स आप सारी यहाँ मॉनिटरिंग कर सकते हो। अभी स्टेजेस कोई बनी नहीं है यहाँ, स्टोरेज अभी आपका कुछ हुआ नहीं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप सारे देख सकते हो कि आपका जावा का होम कहाँ है। जैसे मैंने अपने जावा भी सेटअप कर रखा है, स्काला वर्जन ये वाला है बाय डिफॉल्ट। स्पार्क आईडी है, ये आपका स्पार्क का होम फोल्डर है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। शेड्यूलर मोड कौन सा मेरा फीफो है, जैसे 3 होते थे, कैपेसिटिव, फीफो, वो सारे। हडूप की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ये सारी कौन पे। एग्जीक्यूटर्स देख सकते हो कौन कौन से एग्जीक्यूटर्स चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल इसी में सेटअप किया है तो एक ही एग्जीक्यूटर है। उसके डेस्क चेक कर सकते हो, उसके आरडीडी ब्लॉक्स देख सकते हो कितने बने, स्टोरेज, मेमोरी, डिस्क यूजेस, कोर कितने। मेरे मशीन के 4 कोर है एक्टिव। यहाँ मैक्सिमम आप सारे कितने एग्जीक्यूटर की एंट्रीज देख सकते हो, यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। 100 की देखनी है तो 100 की आ जाएगी। अभी तो एक ही है तो एक ही दिखा रहा है। तो मतलब आप सारा का सारा चेक कर सकते हो। ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, पूरा मॉनिटर कर सकते हो जॉब को। सो अभी नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये एक इनिशियल सेटअप था जो हम लोगों ने अपनी विंडो में किया स्पार्क का इंस्टॉलेशन। नाउ वी आर डिस्कस द आर्किटेक्चर पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, and then after architecture part we will run an application in a Scala language, in a Scala shell we will run, and we will do some more application। और भी हम लोग पार्ट करेंगे, एक दो एप्लीकेशंस का प्रैक्टिकली देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आर्किटेक्चर पार्ट। सो कुछ भी उठा लो जहाँ पे आपके लिए बेटर हो। सो पहले मैं एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देता हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। सो लेट्स सपोज कि ये आपका स्पार्क का क्लस्टर है जिसमें आपकी बहुत सारी वर्कर नोड्स होंगे और बहुत सारी आपकी स्लेव नोड्स, एक वर्कर नोड होंगे और बहुत सारी वर्कर नोड होंगे और एक मास्टर नोड होंगे।
ये आपकी मास्टर नोड है, ठीक है, ये क्लस्टर है पूरा का पूरा। सो ये आपकी मास्टर नोड है, या क्लाइंट नोड बना दो जो मास्टर के थ्रू सबमिट करेगा। अगर हम लोग आपको स्पार्क का आर्किटेक्चर, एक टॉपिक कहीं से भी पिक कर लो, स्पार्क आर्किटेक्चर, तो आपको डायग्राम सब कुछ मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन डाल देना, एक्सप्लेनेशन, तो आपको मैं समझाता भी रहूँगा कि साथ के साथ क्या हो रहा है। तो ये वाले इन लोगों ने भी अच्छा डिस्क्राइब किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वालों ने भी अच्छा किया है, जावा टी इवेंट वालों ने भी स्पार्क का अच्छा डिफाइन किया हुआ है। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप स्पार्क के टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ये ब्रॉडर पिक्चर है कि अंडरस्टैंडिंग अपाचे स्पार्क आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे देख रहे होगे ड्राइवर है जो कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, और जितने भी आपके वर्कर हैं ये सारे वर्कर नोड है जिन पे आपके एग्जीक्यूटर चलते हैं। तो ये सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है, मतलब ये सब आपके वर्कर नोड्स हैं, यहाँ पे जो भी हैं आपके ये सारे वर्कर नोड्स हैं। तो ये वर्कर नोड है, वर्कर नोड, और ये आपका मास्टर है, या आप ड्राइवर बोल लो, जो भी बोलना चाहते हो। ये आपका मास्टर है, मास्टर मशीन, और तो ये मास्टर मशीन है, तो ये सब मास्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। सारा का सारा मास्टर से कनेक्टेड है। फिर इनमें आते हैं क्लस्टर मैनेजर। आई विल डिस्कस यू लेटर ऑन व्हाट इज क्लस्टर मैनेजर। सो क्लस्टर मैनेजर का काम होता है आपकी जॉब को शेड्यूल करना, इन सारे वर्कर नोडों, इन सारे वर्कर नोडों के अंदर एग्जीक्यूटर्स चलते हैं जिन पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है। जितने भी हैं सब के अंदर आपके एग्जीक्यूटर्स चलते हैं, एग्जीक्यूटर्स चलते हैं, इन सब के अंदर आपके एग्जीक्यूटर्स हैं, एग्जीक्यूटर को। अब एक वर्कर नोड पे एक से ज्यादा भी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि एक वर्कर नोड में आपके एक से भी ज्यादा एग्जीक्यूटर्स चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक वर्कर नोड में एक ही एग्जीक्यूटर चलेगा, तो एक वर्कर नोड में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर भी चल सकते हैं। अभी जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे होगे कि एक ही एग्जीक्यूटर है, लेकिन जरूरी नहीं है, आपका एक वर्कर नोड में एक से ज्यादा भी एग्जीक्यूटर होते हैं। और इन सब के बीच में जो बनाया हुआ है वो क्लस्टर मैनेजर है। तो क्लस्टर मैनेजर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक बाय डिफॉल्ट जो अभी काम कर रहा है वो आपका स्टैंड अलोन क्लस्टर मैनेजर है, और इसके अलावा जो 2 और होते हैं, एक यान होता है और एक आपका मीजोज होता है। तो ये 2 क्लस्टर मैनेजर और होते हैं। तो ये आपका क्लस्टर मैनेजर है जो कि आपका इंटरेक्शन करवाते हैं सबसे, ये क्लस्टर मैनेजर है। तो होता क्या है आपके बेसिकली, इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमें समझना जरूरी है। रेजिलिएंट यानी आरडीडी, जो हम लोगों ने कल अच्छा खासा देखा था, व्हाट इज आरडीडी, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, और डायरेक्ट ASIC ग्राफ। ये इसके 2 मेन एब्स्ट्रैक्शंस हैं, या पॉइंट बोल लो। So Apache Spark has a well-defined layered architecture where all Spark component and layer are closely coupled and integrated with various extension and a library. So Apache Spark architecture is based on 2 main abstraction, RDD और Direct ASIC Graph, जिसको DAG कहा जाता है. So one by one we are going to discuss one thing like RDD. So RDD is a resilient distributed data set. So RDD are the collection of data item that are split into a partition. हमने देखा है कि RDD में हम जो भी काम कर रहे थे, let's suppose कि मैंने स्काला के भी कोड लिखे हुए हैं, so ये कल हमारा एक बेसिक प्रोग्राम। तो सबसे पहला जो मेन चीज है कि ये तो स्काला के थ्रू प्रोग्रामिंग है, तो हम लोगों ने यहाँ तक तो ठीक था। सबसे पहले फाइल रीड करना होता है, तो इसमें वेल का यूज होता है, वेल कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो मैं इनको साइड के साइड नोटपैड भी खोल लेता हूँ, ये बंद कर लेता हूँ।
ओके, तो विंडो में थोड़ा सा लोकेशन का इशू है। तो ये हमारा सबसे पहला बेसिक स्टेप है। तो वेल इसमें कीवर्ड होता है, दो टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं स्काला में, वेल एंड वेर। आई होप कि सनी अगर गो थ्रू हुए होंगे स्काला का तो पता चला होगा इनको। Yes, sir. वेल और Yes, sir. We know the well and where difference. तो वेल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है आपका कीवर्ड, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे पाइथन में तो डायरेक्ट हम इनपुट लिखते हैं और उसके बाद सीधा ये लिखने लग जाते हैं sc.xl। इसमें हम वेल कीवर्ड का यूज करते हैं और इसमें हमें अपने लाइनक्स का पाथ देना होता है। मतलब पाथ देना होता है कि जैसे अभी हम पाइथन में पढ़ रहे थे, तो मेरे पास डेटा सेट होगा तो मैं डेटा सेट का पाथ दे देता हूँ। सो मेरा डेटा सेट अगर देखो, तो जैसे मेरे ये टेक्स्ट फाइल है ना, इसमें पूरा टेक्स्ट ही लिखा है। आप अपनी खुद की बना लो टेक्स्ट फाइल, कोई ये पूरी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो इसका पाथ है, मैं ये पास करता हूँ, पुश करता हूँ। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें एक्चुअली में ये वाले सिंबल नहीं लेता है, ये वाले साइन लेता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। txt हमारी फाइल है, अभी तक वही प्रोग्राम है जो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बुक है जो हम लोग पाइथन में कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक वही काम कर रहे हैं जो पाइथन में किया था, बस सिंटैक्स थोड़ा सा ये हम लोगों को देखना जरूरी है। तो ये लाइन हम लोग एक बार रीड करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक एरर दे रहा है हमें, किस चीज की एरर दे रहा है, वेल इक्वल टू sc टैब को साइन नहीं किया हमने, वेल के बाद हम लोग को वेरिएबल असाइन नहीं किया उसको। हाँ अच्छा, वेल के बाद वेरिएबल असाइन नहीं हाँ किया हाँ उसको। सही, वो एक्चुअली में वो हो गया था, डिलीट हो गया था, तो हमने वेरिएबल असाइन नहीं किया था, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि स्पार्क क्या है, एक लेजी एवोल्यूशन है, ठीक है। इसने हमारी आरडीडी बना दिया, आरडीडी ऑफ स्ट्रिंग बनाई है ना। देखो एरर नहीं दिया, एरर ये तब देता है जब हम इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करें, जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमें कॉमन बेसिक एग्जांपल पता है, कलेक्ट। तो कलेक्ट से अगर हम करके देखें तो इसने हमारा सारा डेटा रीड कर लिया, है ना। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। अगर हम इसका 1 बाय 1 देखें तो ये आरडीडीज बना रहा है हमारी, है ना। तो अब आर्किटेक्चर पार्ट में आ जाते हैं। तो आरडीडीज क्या होता है कि आरडीडीज आर द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम दैट आर स्प्लिट इनटू अ पार्टीशन। अब इसने इसके पार्टीशंस भी बनाए होंगे इस आरडीडी के। अगर हमें पार्टीशन चेक करना हो इस आरडीडी के, इनपुट डॉट और आप इसमें ना टैब दबाओ, ये देखो लिस्ट देगा कि आप ये जो इनपुट नाम की आरडीडी बनी है ना, इसके साथ आप इतने सारी एक्टिविटी कर सकते हो, देख रहे हो। आप उसमें कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो, कॉपी लगा सकते हो, काउंट लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे, अब जैसे कल हमने आरडीडी के साथ क्या लगाया था, ये इनपुट तो मेरी आरडीडी बन गई ना sc.xfile करके, आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। तो अब इस इनपुट के साथ हमने कल फ्लैट मैप वाला ऑपरेशन लगाया था, मैप वाले ऑपरेशंस लगाए थे, मैप वाले। तो ये आप लोगों को सारे एक्सप्लोर कर लें 1 बाय 1, समझ रहे हो कि ये हर एक फंक्शन की क्या है
मतलब क्या पर्पज है, क्यों यूज किया। जैसे हम लोगों को कल तो पता था फ्लैट मैप हमने स्प्लिटिंग के लिए यूज किया था, उसने मेरे हर एक डेटा को स्प्लिट कर दिया था, हर एक लाइन के डेटा को स्प्लिट कर दिया था। फिर मैप के थ्रू हम लोगों ने मैपिंग की थी, मैप वाला। फिर रिड्यूस बाई के थ्रू हम लोगों ने एग्रीगेटिंग की थी। तो अभी फिलहाल मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने आरडीडी के पार्टीशन चेक करने कि कितने बनाए इसने। तो गेट, यहाँ पे गेट नम पार्टीशन होगा, कहाँ गया, ये रहा गेट नम पार्टीशन। टैब दबाओगे अपने आप ही ले लेगा कि गेट से रिलेटेड ये सारे हैं। और स्टोरेज लेवल भी चेक कर सकते हो, लेटर ऑन वी विल डिस्कस स्टोरेज लेवल होता क्या। तो जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये मेरे को बता देगा मेरे अभी 2 पार्टीशन बने हुए। तो यानी अब जितने पार्टीशन बनते हैं ना उतने आपके समझ लो जैसे मैपर्स होते हैं ना वैसी काइंड ऑफ आपकी मैपिंग होती है, उतनी आपके एग्जीक्यूटर्स में वो चलती है, आपकी जॉब चलती है कंटेनर्स के अंदर। अगर 5 मैपर बने, 5 पार्टीशन होंगे तो 5 कंटेनर्स बनेंगे जिन पे आपके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा होगा। आप ये पार्टीशन बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। कैसे? जब फाइल को रीड कर रहे होते हैं ना उसी टाइम पे आप अगर अपने नंबर ऑफ पार्टीशन बोल दो कि 10 पास कर दे, मैं 10 पास करना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही 10 पास करोगे चेक करो तो आपके नंबर ऑफ पार्टीशन 10 हो जाएंगे बेसिकली। तो ये पैरेलल है, इससे पैरेललिज्म अचीव कर सकते हो आप लोग कि मतलब आप कितने पार्टीशंस रखना चाहते हो ये आप पे डिपेंड है। बाय डिफॉल्ट वो आपके कोर के अकॉर्डिंग उठा लेता है। सो ये कोई भी पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट 2 या 4 कोर होते हैं जो उसके बेसिस पे उठा लेता है नंबर। अब वरना आप अपना खुद का पार्टीशन सेट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर लो, अभिषेक आप अपने एंड पे नोट करते रहो क्वेश्चन। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि हम लोग मैक्सिमम कितने पार्टीशन दे सकते हैं और मिनिमम कितने दे सकते हैं। मतलब हम पार्टीशन ना ज्यादा दे सकते हैं ना कम कर सकते हैं। जैसे मैंने सेम क्वेश्चन वहां पूछे थे कि ये ब्लॉक का साइज हम ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते। सेम चीज पार्टीशंस में हम पार्टीशन भी एक लिमिट तक रख सकते हैं कि इतना रखें पार्टीशन तो फायदेमंद रहेगा, इससे कम रखेंगे तो लॉस है, इससे ज्यादा रखेंगे तो लॉस है। तो रीजन फाइंड आउट करना है कि हम पार्टीशन ना ज्यादा रख सकते हैं ना कम रख सकते हैं। फाइंड आउट ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम मान लो मेरे पास इतना टेराबाइट का डेटा तो मैं मैक्सिमम इसके लिए कितना पार्टीशन रख सकता हूँ, कितना नहीं रख सकता हूँ। तो फाइंड आउट करना, ठीक है। सो अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग पार्टीशंस रख सकते हैं। तो आरडीडी में जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्टीशंस की फॉर्म में होता है। तो आरडीडी आर द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम दैट आर स्प्लिट इनटू अ पार्टीशन एंड कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी ऑन वर्कर नोड्स ऑफ ए स्पार्क क्लस्टर। जो वर्कर नोड्स होते हैं स्पार्क क्लस्टर के, ये जिनकी बात कर रहे हैं, ये वर्कर नोड है ना, इनके एग्जीक्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है ये डेटा। तो अब आपका डेटा अगर 10 मशीनों में पड़ा हुआ है तो ये वर्कर नोड के एग्जीक्यूटर्स में आ जाएगा वो डेटा सारा का सारा। समझ रहे हो? तो ये बताना चाह रहा है। तो मतलब क्या बोला है मैंने कि एंड कैन बी स्टोर किया जा सकता है इन मेमोरी ऑन वर्कर नोड ऑफ स्पार्क क्लस्टर। तो इन टर्म्स ऑफ डेटा सेट अपाचे स्पार्क सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ आरडीडी। 2 टाइप्स की आरडीडी होती है, एक हडूप डेटा सेट विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द फाइल स्टोर ऑन एचडीएफएस एंड पैरेललाइज कनेक्शन। तो जैसे मैंने बात किया था आरडीडी को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। कल तो एक हमने तरीका देखा था कि हम लोकल फाइल सिस्टम या हडूप से उठा रहे हैं डेटा, ठीक है, इसके थ्रू हम आरडीडी क्रिएट कर सकते हैं। तो तभी हम लोगों ने ये एससी टेक्स्ट फाइल का यूज किया था। एक होता है अपना खुद का कलेक्शन। अब मैं खुद की भी आरडीडी बना सकता हूँ। लाइक मैंने बना लिया इनपुट 2 नाम से बना लेता हूँ और इसमें मैं यूज करूंगा एससी डॉट टेक्स्ट फाइल यूज नहीं करूंगा, टैब दबाऊंगा पैरेललाइज फंक्शन आता है। तो इसमें देखोगे एससी, देखो ये आरडीडी वाले फंक्शन है सारे कि आरडीडी के थ्रू आप ये फंक्शनों को एक्सेस कर सकते हो। ये एससीसी के थ्रू फंक्शन है, इसमें ये वाले फंक्शन नहीं आ रहे होंगे, ये मिन मैक्स या फॉर ईच फ्लैट मैप ये सब आरडीडी में परफॉर्म कर सकते हो। ये एससीसी के, ये स्पार्क फंक्शनैलिटी, इसका नाम ही पड़ा है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। एससी के थ्रू आप स्पार्क की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहोगे तो हमने अभी जैसे टेक्स्ट फाइल यूज किया था, तो टेक्स्ट फाइल के थ्रू हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा उठा लेते हैं। यहाँ टीएक्सटी फाइल होगा कहीं, आप टी दबा लो, टैब दबा लो, अपने आप ही आ जाता है। ये देखो टेक्स्ट फाइल और टू स्ट्रिंग। तो अब मेरे पास एससी के थ्रू पैरेललाइज होता है जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन को उठाने के काम आता है, पैरेललाइज मेथड। ये देख रहे हो पैरेललाइज आ गया है ना। तो पैरेललाइज मेथड होता है। तो इसमें मैं अपना कुछ भी एग्जिस्टिंग डेटा सेट पास कर सकता हूँ।
अगर मेरे पास कोई एरे है या लिस्ट है तो उनको मैं पास कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो जैसे कि मैं अपना एक एरे बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ। आई होप कि स्काला में अगर किसी ने काम किया हो, पढ़ा हो, जैसे कि मैंने बोला भी था कि सनी को स्काला टी यस पॉइंट में देखा था स्काला, मैंने। हाँ तो लिस्ट बनाना, तो मेरे को नहीं लग रहा है सनी कि तुम्हें कोई चैलेंज आएगा इसमें। नहीं, वो न्यू कीवर्ड नहीं यूज करते, डायरेक्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं। हाँ तो वो हम लोग सेपरेटली कनेक्ट होंगे। सो लेकिन मैं आपसे होप करूंगा कि आप इसको पढ़ लेना। स्काला बहुत इजी लैंग्वेज यार, कोई इसमें हार्ड नहीं है। तो लेट्स सपोज इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसको वैर दे दो या वेल दे दो, इट्स अप टू यू। वेल और वेर में डिफरेंस ये है कि वेर बाद में चेंज भी हो सकता है, और जो वेल होता है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, अब मैं अपने इसमें पास कर सकता हूँ। ये पैरालाइज मेथड है ना, तो अभी अगर मैं इसका टाइप देखो तो लिस्ट ही बताएगा, लेकिन अब अगर आप देखोगे मैं इसमें अपनी लिस्ट पास कर रहा हूँ, मेरी ये लिस्ट है। तो पैरालाइज मेथड से यानी एग्जिस्टिंग कलेक्शन है मेरा। अब मैं अगर इनपुट का टाइप चेक करूँ, यहाँ टाइप चेक करने का तरीका अलग होता है, TPY। वहाँ आप जैसे टाइप पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल पास करते हैं, यहाँ पे कोलन टाइप और फिर अपनी नाम दो। अब मैं देख रहा हूँ इनपुट इसका ये है क्या, ये RDD बनी है कि नहीं बनी है। तो ये देखो RDD बनी हुई है, और वैसे भी उसने दिखा दिया था इनिशियलाइज के टाइम पे RDD बनी हुई है। अब ये देखो ये RDD बनी है, तभी मैं इसके फंक्शन एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर टैब दबाऊंगा तो देखो RDD वाले सारे फंक्शन बता रहा है। तो ये दूसरा तरीका है कि RDD को क्रिएट करने का, एक एग्जिस्टिंग कलेक्शन से। जैसे आप मेरी खुद की लिस्ट, अब मैं इसमें अगर कलेक्ट मारूंगा तो ये मेरे बता देगा सारा का सारा डेटा, ये सारा का सारा डेटा मेरा आ गया। गॉट इट। सो ये सारा का सारा है। आप स्पार्क के बहुत सारे सेशन खोल सकते हो, एक ही सेशन नहीं होता है। आपने अगर यहाँ पे जैसे एक स्पार्क के सेशन में कुछ काम कर रहे हो, आप एक दूसरा सेशन खोल लो, ऑलरेडी पहला वाला चल रहा है, आप दूसरा भी खोल सकते हो। उसमें आप दूसरे मतलब आपके अगर 10 एप्लीकेशन चल रही है तो 10 एप्लीकेशन के सेशंस खोलेंगे, 10 सेशंस होंगे आपके। और जब वो एप्लीकेशन डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो अपने आप ही वो सेशन भी खत्म हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को दूसरा पोर्ट नंबर मिलेगा। जैसे उसके लिए 404 बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है 404 होता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, इसको मिला था 404 पोर्ट नंबर को, ये रहा 4040 बाय डिफॉल्ट। अब ऐसे ही बढ़ता रहेगा, 401 हो जाएगा, जिसमें आप अलग अपना ट्रैक कर रहे होगे। तो ये देखो 401 आ गया, जिसमें आप अपनी वेब यूआई कनेक्ट कर सकते हो। अब ये 404 में चल रहा था, ये 401 का अलग खुल गया स्पार्क सेशन। आप एक से भी ज्यादा सेशन चला सकते हो। अभी जैसे आपने जितनी भी एक्टिविटी की है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी आपने एक्टिविटी की है, तो ये सब चीज आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। आप स्टेजेस में जाओगे ना, अभी ये 401 का, 404 में जाओ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्टेजेस देख सकते हो। अभी तक आपने 2 कलेक्ट ऑपरेशंस लगाए, कलेक्ट है, जस्ट वेट यार। सॉरी गाइस। सो यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोगों ने एक्शंस परफॉर्म किए, जो भी एक्शंस है जॉब्स में भी आ रहे होंगे। यहाँ पे आपके 2 अभी आपने जॉब्स को मॉनिटर किया है। आप अच्छा खासा इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बता रहा है टोटल पे कितने पार्टीशंस बने हुए हैं। 4 पार्टीशंस से इसके 2 पार्टीशंस बने हुए थे, है ना। जितनी भी फाइल्स हम लोगों ने यूज की हैं अभी तक, कलेक्ट ऑपरेशंस लगाए, तो कितना टाइम लिया, ड्यूरेशन 0.3 सेकंड में इसने इसको प्रोसेस कर दिया था, इसको 1 सेकंड में फर्स्ट टाइम रीड किया था, फिर मेमोरी में ले आता है डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप इवेंट टाइमलाइन में देख सकते हो कि कितना टाइम लगा, क्या लगा, सक्सीड, फेल्ड, रन, सारा का सारा। आप किसी पर्टिकुलर कलेक्ट का देख सकते हो, इस कलेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या हुआ होगा, ये सारा दिखा रहा है कि पहला पार्टीशन को रीड करने में कितना टाइम लगा, दूसरे को कितना लगा। आप अपना स्टोरेज लेवल भी चेक कर सकते हो। अभी स्टोरेज लेवल आया नहीं है, लेटर ऑन आई डिस्कस दिस। स्टोरेज लेवल भी आप चेक कर सकते हो।
सारा का सारा डैग विजुअलाइजेशन सारा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि स्पार्क में आरडीडी को क्रिएट करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो हो गया आपका हडूप डेटा सेट जिसमें आप पाथ पास कर रहे हो, एक पैरालाइज कलेक्शन हो गया विच इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्काला कलेक्शन, उसका खुद का कलेक्शन है। आप यहाँ रेंज पास कर सकते हो। मान लो कि मैं अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट की जगह कोई रेंज पास कर दी, रेंज मेथड भी होता है इसमें, मैं पास कर रहा हूँ 1 से लेकर 10 लाख तक दिखा दे, इतने नंबर आपके खुद के दिखा देगा। सॉरी, रेंज फंक्शन काम नहीं करता है। सो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो वेज ऑफ आरडीडी क्रिएट करने के तरीके। तो पैरालाइज मेथड के थ्रू हमने किया था अभी, क्रिएट यूजिंग अ पैरालाइज मेथड। तो इसमें हम लोग अपनी सीक्वेंस या लिस्ट पास कर सकते हैं। अभी हमने एक लिस्ट पास करके देखा, अब एक सीक्वेंस पास करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें देखो ये सीक्वेंस पास किया किसी ने जावा 2020, फिर फॉर ईच किया। फॉर ईच जनरली यूज होता है आप लोगों को ना हॉरिजेंटल में डेटा प्रिंट करवाने के लिए, तो इन लोगों ने पूरा सीक्वेंस पास किया हुआ है। आप चाहो तो इसकी भी आरडीडी बना सकते हो। तो इसने आरडीडी बनाई, तो आरडीडी पर जब फॉर ईच भी आपका एक एक्शन ही है, तो लेकिन ये आपका डेटा हॉरिजेंटल में प्रिंट कराएगा, प्रिंट एल। इसमें आपको ये पास करना होगा, तो आपका डेटा देखो ऐसे प्रिंट कराएगा जावा ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। सो क्रिएट एन आरडीडी, ये टेक्स्ट फाइल के थ्रू है आरडीडी क्रिएट करना। जैसे आप हडूप का पाथ दे दो या लोकल फाइल सिस्टम का पाथ दे दो, उसके थ्रू है। और फिर आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर, ये देखो रेंज ऐसे पास कर सकते हो आप लोग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट। तो बोल रहा टू कन्वर्ट डेटा सेट आर अ डेटा फ्रेम टू आरडीडी जस्ट यूज आरडीडी मेथड। अच्छा, तो ये बता रहा है कि आरडीडी मेथड को आपको रेंज या उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे मैं रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो पाइथन में यूज होता है, मैं सीधा डायरेक्टली रेंज लिख रहा हूँ, तो वो पाइथन में यूज होता है रेंज फंक्शन। एस सी डॉट पैरालाइज, ये एरे पास किया हुआ है, ये टेक्स्ट फाइल मेथड है।
सर आप म्यूट हो सर। I'm sorry यार guys. So here you can see that रेंज ऐसे यूज किया हुआ है 3 1। अच्छा आर कैपिटल है, तो पैरालाइज मेथड था मेरा ये था, तो इसमें आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हाँ सो अब देखो इनपुट आर डी डी इनपुट 2 डॉट कलेक्ट, तो ये मेरा प्रिंट करवा देगा 1 से लेकर 1000 तक, मतलब सो ऑन चलता जा रहा है। और प्रिंट एलन फॉर ईच, ये सारे एक्शन परफॉर्म करते रहोगे आता जाएगा फॉर ईच प्रिंट एलन। सारे हैंड्स ऑन साइड टू साइड करते रहोगे अपने आप, ये तो ये पूरा चलता रहेगा जो भी है, ठीक है। ये रेंज पास की, तो रेंज फंक्शन। तो आरडीडी को क्रिएट करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं जिनके थ्रू हम आरडीडी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या, तो आरडीडी को क्रिएट करने के 2 तरीके। तो पहला जो आर्किटेक्चर का मेन पार्ट है वो आरडीडी है, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, कि आपको आरडीडी क्रिएट करना है। और आरडीडी के अंदर भी क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। दिमाग ध्यान रखना कि आरडीडी पैरेललिज्म अचीव करनी है तो आप पार्टीशंस के थ्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इतने पार्टीशन बन गए और आप चाहो तो आप पार्टीशन को कंट्रोल भी कर सकते हो कि इतना बनाना है कि कितना बनाना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेटा सेट अपाचे 2 टाइप्स आरडीडी सपोर्ट करता है, एक हडूप से ले रहे हो एक एग्जीक्यूशन। तो स्पार्क आरडीडी सपोर्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शंस। मतलब आरडीडी पे आप 2 चीजें परफॉर्म कर सकते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक एक्शन। तो अगर आपने कोई आरडीडी बनाई है, लेट्स सपोज ये आपकी आरडीडी है जिसके 10 पार्टीशन है ना, इन 10 पार्टीशनों पे आप 2 एक्टिविटी कर सकते हो, या तो एक्शन कर रहे होगे या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। आपको भी पता कि अगर एक्शन करूंगा तो वैल्यू मिलेगी और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो मेरे को वो मिलेगा, नई आरडीडी मिलेगी। कि जैसा कि हमें पता है कि आरडीडी हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल, इग्नोर द स्पेलिंग्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो इससे हमें एक नई आरडीडी जनरेट होती है, एक्शन से हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक आरडीडी। आरडीडी इज अ रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। रेजिलिएंट का मतलब फॉल्ट टॉलरेंट है और जिसको रिकवर किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में रहेगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होगी। और डेटा सेट कोई भी हो, चाहे वो जेसन हो, एक्सएमएल हो, कुछ कैसा भी डेटा सेट हो, डजंट मैटर। अब आता है डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जनरली मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ कैसे बनता है। एक हम लोग एप्लीकेशन चला के देखते हैं, वर्ड काउंट की देखते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डेटा रीड किया था, ये वाली कमांड थी, कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, इस वाले में करता हूँ 4041 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया, अभी मैं कोई एक्शन नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। तो इसने मेरे फाइल को रीड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरे कोड का, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मेरे को डेटा स्प्लिट करना है। तो हम लोगों ने सारी कमांड कल पढ़ी थी, पाइथन के थ्रू पढ़ी थी, आज हम लोग स्काला में कर रहे थे। देखो ये स्काला का पूरा कोड लिखा हुआ है, आई शेयर यू सनी, कि आपको मैं शेयर कर दूंगा कि आपको कैसे रन करने होंगे स्काला के कोड, ठीक है। अब मेरा ये आरडीडी बनी इनपुट वेल नाम से, इनपुट, ये मेरी आरडीडी है इनपुट नाम की। इस इनपुट पर मैं फ्लैट मैप ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये हर एक लाइन को लेगा। वहां हम लैम्डा यूज करते थे, याद है, मैंने गलती से कल ये यूज कर लिया था, ये रॉकेट साइन है। तो यहाँ पे हर एक लाइन को उठाएगा, हर एक लाइन पे स्प्लिट मेथड परफॉर्म करेगा और स्पेस के बेसिस पे उनका डेटा स्प्लिट कर देगा। तो मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे चलाऊंगा, तो इसने अभी मेरा देखो कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। इवन अगर आप देखोगे ना इसका वो भी खोलोगे वेब यूआई, तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ होगा। अगर आप इसका वेब यूआई खोल के देखोगे, ये है इसका वेब, सॉरी ये इसका वेब यूआई। देखो अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी 401 में कुछ नहीं, ना स्टेजेस बने ना जॉब बने, ये लेजी एवल्यूट है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है भाई, कुछ भी नहीं, यहाँ खाली है सब। तो ये लेजी एवोल्यूशन कहलाता है। जब तक हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते तब तक हमें ये भी नहीं पता कि हम जो कोड टाइप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जब तक आप उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे। एक्शन भी एक अपने में एक कॉस्टली ऑपरेशन है, क्योंकि आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स दैट प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ बढ़ेगा भाई। जितना अवॉइड हो सके अपने कोड में एक्शन को अवॉइड करो। ये नहीं कि हर स्टेप के बाद एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। जब अपना कोड यहाँ पे टेस्ट कर लो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके, देन यू कैन अपना आप खुद की एप्लीकेशन बनाओ, उसको रन करो।
सो यहाँ पे अभी देखा हमने नेक्स्ट स्टेप किया, फ्लैट मैप ऑपरेशन परफॉर्म किया जिससे हमारा सारा डेटा स्प्लिट होगा। फिर तीसरा है, अब कल हम लोगों ने तीसरा स्टेप क्या किया था, मैपिंग की थी ना, इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोगों को याद हो कि हम लोगों ने कल मैपिंग की थी, वो वाला कोड भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो इन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, वर्ड्स के साथ ना काउंट बाय वैल्यू परफॉर्म कर दिया। काउंट बाय वैल्यू क्या, आपका एक एक्शन है, ये क्या करेगा, हर एक वर्ड को, अब जैसे आपके पास डेटा ऐसा है कुछ, जैसे है ना, पंकज स्पेस पंकज हडूप हडूप पंकज इज पंकज हडूप, ऐसा है कुछ डेटा हमारे पास कुछ भी। तो ये क्या करेगा, हर एक वर्ड को उठाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी बार आए ना, डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देगा। आपके 2 स्टेप हट गए इस केस में। अगर आपको याद हो, अगर मैं वर्ड काउंट का अपना स्टेप खोलूँ, ये था हमारा प्रोग्राम वर्ड काउंट का। हम लोग क्या करते थे, फ्लैट मैप के बाद हर एक डेटा की मैपिंग करते थे, x1 1 करते थे, फिर की के बेसिस पर हम एग्रीगेट करते थे सारी वैल्यूज का, और तब फाइनली जाके हमारा आउटपुट आता था, जो भी रिजल्ट आता था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट के बेसिस पे कर रहे हैं, सीधा हमने एक्शन परफॉर्म किया काउंट बाय वैल्यू। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रन करूंगा, तो ये काउंट बाय वैल्यू सीधा हमें वैल्यू दे देगा, देख रहे हो, मतलब ये सारा एग्रीगेट हर का आउटपुट आ गया। देखो कौन सा वर्ड कितने बार आया है, ब्ला 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 ब्ला, देख रहे हो, फिजिकली 1, लॉन्ग कुकिंग 1, 27 1, हडूप टोल्ड 1। तो काउंट बाय वैल्यू क्या, आपका एक एक्शन है, सीधा रिजल्ट दे रहा है। और जैसे ही मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया ना, आपका यहाँ पे वेब यूआई में भी डेटा आने हो गया। स्टेज करूंगा तो ये देखो आपका काउंट बाय वाले एक्शन परफॉर्म हो गया, देख रहे हो। तो ये काउंट बाय वैल्यू वाला आपका एक्शन परफॉर्म हो गया। तो अब जैसे कि अगर मैंने एक काउंट बाय वैल्यू खोला, यहाँ पे आता है डैग। डैग में आप देख सकते हो कि मेरा सीधा एक स्टेज बनी, स्टेज 1। आप सबसे बेटर है कि जॉब में जाओ, जब जॉब में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका काउंट बाय वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डैग खोलो, तो आपको देखो ये पूरा दिखा रहा है कि हमने पहले टेक्स्ट फाइल रीड की, फिर फ्लैट मैप किया, और फिर काउंट बाय वैल्यू किया, और इसकी 2 स्टेजेस बनी है। अब हमें कैसे पता यार इसकी 2 स्टेजेस बनेगी, 3 स्टेजेस बनेगी? आप देखोगे ना, अगर कभी भी स्पार्क के डैग देखोगे, बहुत खतरनाक बने होते हैं। अभी तो एक छोटी सी एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, अगर आप स्पार्क के डैग देखोगे तो ऐसे ऐसे बने होते हैं यार, भयानक से। ये देखो ऐसे ऐसे डैग बने होते हैं, देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे डैग बने होते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन करते हो उसका डैग बनता है। डैग इज अ डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। ये सारे डैग बनते हैं कि किस स्टेज, मतलब हर एक स्टेज में क्या क्या एक्टिविटी भी है। तो आपका अगर हम इसका डैग देखें, इसमें क्या हुआ, पहले टेक्स्ट फाइल रीड की थी, पहला कोड यही बता रहा था। अगर आप देखोगे हमारा जो पहला कोड था यही था कि मतलब इसने एक टेक्स्ट फाइल रीड की थी। उसके बाद फ्लैट मैप परफॉर्म हुआ था, तो आप देख रहे हो कि फ्लैट मैप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर काउंट बाय वैल्यू किया, और तुरंत सेकेंड स्टेज आ गई। ठीक है, तो अभी ये डैग को मैं और भी बताऊंगा। तो ये इस कोड में आपको क्या डिसएडवांटेज दिखा, कोई बताएगा मुझे, इस कोड से क्या डिसएडवांटेज है? मतलब मैंने इसमें मैप और रिड्यूस बाय वाला पोर्शन चलाया नहीं, तो काउंट बाय वैल्यू से क्या क्या मतलब, क्या इसका क्या डिसएडवांटेज है? मतलब इस कोड को देखो, आंसर मेरा तब भी आ रहा है हर वर्ड को काउंट कर ले तो, लेकिन वो मैप वाला और रिड्यूस बाय वाला स्टेज ये क्यों चला रहा हूं मैं? रिड्यूस बाय वाला स्टेज क्यों चला रहा हूं मैं, मैप और रिड्यूस बाय? चलो मैं एक छोटा सा डेटा सेट लेता हूं। है ना, अब इस वर्ड काउंट के प्रोग्राम को हम ना और भी बेटर कर सकते हैं। इसका मेरे पास दूसरा कोड भी है। ये तो पहला बेसिक था, वर्ड काउंट के प्रोग्राम को बेटर किया।
तो ये बेटर वर्जन है। अभी तक हम लोग ने जैसे फाइल को रीड किया, उसके बाद स्प्लिट किया, अब यहाँ पे देख रहे हो मैपिंग की लोअर केस में कन्वर्ट की। क्योंकि अगर हम लोग ये वाला कोड देखेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर इस वाले कोड में अगर मैं चलाऊंगा इसे, मान लो इसको मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ कॉपी करके, इसको बनाता हूँ मैं, क्या बनाऊँ उसे, वर्ड बना लेता हूँ डेटा नाम से। अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो ये है मेरे पास, ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने डेटा नाम से। अब मैं इस कोड को एक बार रन करके देखता हूँ दोबारा। तो ये सबसे पहले मैंने फाइल को रीड किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस बार डेटा वाली फाइल को रीड करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये आ गया, ठीक है, मतलब data.txt। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इनपुट डॉट कलेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कलेक्ट। तो ये सारा डेटा रीड कर लिया इसने मेरा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चला था मेरा, ये वाला चला था। तो मेरी इनपुट नाम की RDD, उस पर मैं फ्लैट मैप लगा रहा हूँ, ये सारे वर्डों को तोड़ देगा। अब सीधा काउंट बाई वैल्यू चला रहा हूँ, ये है ना काउंट बाई वैल्यू। तो अब इसमें एक चीज नोटिस करो, तो इज यहाँ पे बता रहा है मेरा एक बार आया, पंकज 1 बार आया, ये वाला पंकज 1 बार आया, ये वाला पंकज 3 बार आया, ये वाला पंकज 1 बार आया। भैया ये है तो पंकज, बस इनके वर्ड ऊपर नीचे हो रखे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया 1 बार आया, ये ऑस्ट्रेलिया 1 बार आया, जबकि ऑस्ट्रेलिया स्पेलिंग सब कुछ सही है। तो मैं इस कोड को और भी बेटर वे में कर सकता हूँ। उसके लिए ये वाला मेरा कोड था। इसमें मैंने क्या किया, जैसे ही वर्ड वाला था उसके बाद मैंने मैप फंक्शन दोबारा यूज किया। फ्लैट मैप के बाद हम सीधा काउंट बाय वैल्यू मार रहे थे। तो मैंने अपने कोड को और अच्छे ढंग से करने के लिए नॉर्मलाइज एवरीथिंग लोअर केस। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो वर्ड था इसके बाद मैंने ये वाला स्टेप चलाया कि मैं अपने कोड को पूरा लोअर केस में ला सकता हूँ, मतलब सारे वर्ड्स को लोअर केस में लाऊं, तब काउंट बाय वैल्यू परफॉर्म हो, काउंट ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच वर्ड। सो अगर मैं ये वाला परफॉर्म करूं, उसके बाद काउंट बाय वैल्यू लगाऊं, अब ये मैं काउंट बाय वैल्यू लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे को वर्ड्स पे नहीं लगाना होगा, यहाँ किस पे लगाना होगा, लोअर केस RD, लोअर केस। तो मैंने 3 प्रोग्राम बनाए थे, एक तो पहले काउंट बाय वैल्यू के थ्रू बनाया था। अब देखो इसमें आउटपुट सारा अच्छे से आ रहा होगा। इंडिया 1 बार, पंकज देखो 6 बार आया, उसने सारे पंकजों को ठीक कर दिया, जो एन कैपिटल था उनको लोअर केस में ले आया सारा का सारा। सो बेसिकली ये कोड हमारा क्या कर रहा था, लोअर केस में लेके आ रहा था हमारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हर एक वर्ड को लिया और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, टू लोअर केस, ये भी मेथड होता है। और फिर उसके बाद अकरेंस की। अब इसमें और क्या दिक्कत है, जैसे काउंट बाय वैल्यू है, इसमें और क्या दिक्कत आ रही है, मतलब इससे भी बेटर कोड हम बना सकते हैं वर्ड काउंट का, वो भी मैंने लिखा हुआ है। अब ये दूसरा कोड था, अब ये तीसरा कोड है। ये कोड है कि इसमें हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो इस कोड में क्या किया, अगेन हम लोगों ने क्या किया, फाइल को रीड किया, फ्लैट मैप परफॉर्म किया। देखो इसमें मैंने मैप का यूज किया, वहां पे भी कर रहा था, सॉरी, सेकंड कोड में लोअर, यहाँ पे वो देखो मैपिंग वाला स्टार्ट किया मैंने यूज करना, x,1 और फिर रिड्यूस बाय की परफॉर्म किया। तो काउंट बाय वैल्यू में क्या दिक्कत थी, मैं वहां सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। कल के दिन किसी ने मेरे को बोला यार मुझको टॉप 10 रिजल्ट दिखाओ जो सबसे ज्यादा बार आए, तो काउंट बाय वैल्यू में आप लोग शॉर्टिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ पे आप अगर देखोगे लोअर के सारे लोअर केस में हुए, मैपिंग की जो हम लोगों ने पाइथन में भी की थी, x,1 लगाया। फिर फर्दर आप चाहो ना इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये RDD बन रही है, और या तो डॉट करके आगे ही लिख सकते हो ऑपरेशन। आपको मैं दोबारा बताता हूँ ये, जैसे कि यहीं पे कर लेते हैं, मैं इसको उठा लेता हूँ, इतना पार्ट उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये लोअर केस वाला था,
देख रहे हो? अब इसमें आप वो भी देख रहे हो कि हम कोई भी आरडीडी दोबारा यूज उठा सकते हैं पर्पस के लिए। जैसे मैंने लोअर केस में काउंट बाय वैल्यू परफॉर्म कर लिया था, इट डजंट मीन कि मैं इस आरडीडी को रीयूज नहीं कर सकता हूँ। मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ इस आरडीडी को, इसकी मैपिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका आउटपुट सॉरी, अब देखो इसने सारे वर्डों की मैपिंग कर दी होगी। एक बार लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसने सारे वर्डों की मैपिंग कर दी होगी। इसका मैं नाम रख देता वर्ड काउंट डॉट मैप। ठीक, सॉरी वर्ड काउंट ही रखना होगा मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ आरडीडी वर्ड काउंट नाम से। अब देखो इसने सारे वर्डों की मैपिंग कर दी होगी, जैसे पंकज वन, हडूप वन, सबको लोअर केस में लाया। उसके बाद रिड्यूस बाय की परफॉर्म करते हैं। या तो आप डॉट करके इसी के आगे रिड्यूस बाय का फंक्शन लिख लो, या आप अलग वेरिएबल बना सकते हो आर एस रिजल्ट नाम से। रिजल्ट नहीं है, आरडीडी बनाएगा, रिजल्ट आरडीडी, रिजल्ट नहीं है आरडीडी, क्योंकि रिड्यूस बाय की जो आपका है वो एक आपका वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि एक एक्शन है। वर्ड काउंट, ये मेरी आरडीडी है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस बाय की ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रिड्यूस बाय की ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक वर्ड आ रहा है। तो हमारे पास डेटा x कॉमा, देखो यहाँ पे ऐसे लेते हैं, वहां पे आपको ध्यान रखना होगा, और मैं उनका एग्रीगेट कर रहा हूँ x प्लस वाई। ठीक है, और रिजल्ट आरडीडी में प्रिंट करा रहा हूँ, रिजल्ट आरडीडी डॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसने सारा का सारा प्रिंट कर दिया। अब अगर मेरा काउंट बाय वैल्यू होता तो काउंट बाय वैल्यू सीधा एक एक्शन है, उस एक्शन पे मैं फर्दर सॉर्टिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को आउटपुट दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाता, अगर मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता, ये वाला, तो अगर मैं टाइप चेक कर रहा होता ना वर्ड काउंट का, तो वर्ड काउंट मेरा कोई आरडीडी नहीं है, क्योंकि आरडीडी पे ही आप शॉर्टिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट का वो देखूं, है ना, तो इसका टाइप क्या बताएगा ये, कि ये आपका स्काला का कलेक्शन है, डेटा दिखा रहा है मैं, ना कि कोई आरडीडी। समझ रहे हो? तो हमारा ये बेटर प्रोग्राम मैंने बनाया, इसलिए बनाया कि कल के दिन अगर आपको अपना मतलब शॉर्ट करना हो कि कौन सा वर्ड ज्यादा आया, तो यहाँ पे हमारा वर्ड काउंट एक आरडीडी बनाया। अब इस वर्ड काउंट पे हमने दोबारा मैप फंक्शन किया और स्वैपिंग कर दी। क्या की? स्वैपिंग कर दी। अब तक आपका डेटा ऐसा आ रहा था जैसे कि पंकज लिखा हुआ है, पंकज कॉमा 45। अब शॉर्टिंग जो होती है वो इस पे होगी, लेकिन शॉर्टिंग तो नंबरों पे होती है, लेकिन वो शॉर्टिंग इन पे करता है की, क्योंकि अभी उसके हिसाब से ये की है और ये वैल्यू कॉमा वैल्यू है, तो शॉर्टिंग तो आपकी वैल्यू वाले पार्ट में हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ड काउंट डॉट मैप में दोबारा ये जो डेटा आया रिड्यूस बाई की करके, इसमें क्या किया हम लोगों ने, स्वैपिंग कर दी। जो x.2 यानी सेकेंड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको आगे कर दे और इस वाले को पीछे कर दे। तो यहाँ पे स्वैपिंग भी टू शॉर्ट बाय, तो फ्लिप कर दिया हमने, जैसे वर्ड और काउंट था, अब टपल को हमने काउंट और वर्ड कर दिया, काउंट पहले आएगा, देन शॉर्ट बाय की हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो आया ना मेरा, ये मैपिंग के कारण, अब इस पर मैंने क्या परफॉर्म कर दिया, शॉर्ट बाय की ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब मेरा सारा डेटा, अब इसके अंदर असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, वो आप पास कर सकते हो। फिर मेरे को अपना रिजल्ट प्रिंट करवाना था, तो मैंने फॉर लूप का भी यूज कर लिया, फॉर रिजल्ट, ये सारा का सारा ये है कि मैंने हर एक एलिमेंट को उठाया, ये मेरा काउंट है रिजल्ट 1, और उसका वर्ड ये है, पहले वर्ड को प्रिंट करवाना तब काउंट को करवा रहा हूँ। कंसोल में और भी बेनिफिट है आप रन करने के, जैसे आपको पता है कि आपने यहाँ तक तो कर लिया था, लोअर केस तक कर लिया था, अब जैसे कि इतना पोर्शन मेरे को और चलाना है, तो आप कैसे चला सकते हो, यहाँ पे यहाँ आप करो कोलन, यहाँ पे आप अपना बाकी का कोड पेस्ट कर दो, एंटर द मोस्ट, और बाहर निकलना है कंट्रोल डी कर दो, तो ये आपको रिजल्ट प्रिंट कर देगा, कंट्रोल डी, और शॉर्टेड रिजल्ट प्रिंट कर देगा जो सबसे ज्यादा बार आया, तो कंट्रोल डी, देख रहे हो? तो अब ये देखो, इसमें आप एक गड़बड़ी देख रहे होगे, आप लोगों को लग रहा है ये ढंग से शॉर्टिंग नहीं हुई है, कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं हुई है ढंग से शॉर्टिंग? जिसने भी बताया मैं समझ लूंगा बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि मैंने शॉर्ट बाय की परफॉर्म किया हुआ है। क्योंकि ये की के बेस पे शॉर्ट की क्यों?
शॉर्टिंग तो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ हो गई थी शॉर्टिंग भाई, इस स्टेप में तो हो गई थी शॉर्टिंग। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ये वाला स्टेप आपको हटाता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस स्टेप को लेके। मैं ये वाला स्टेप हटाता हूँ, बस ये दो प्रिंट करा रहा हूँ। ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरे सारे काउंट कर रहा है ना, हर एक वर्ड का कितना वैल्यू आया है। पंकज 6 बार आया, हडूप 6 बार आया। उसके बाद मैं ये शॉर्टिंग कर रहा था, तो मैं ये दो स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। इस वाले में क्या कर रहा हूं मैं, अब जो भी मेरा रिजल्ट आया होगा पंकज 6, तो अब 6 को आगे ला जाएगा, पंकज को बाद में ला जाएगा, और फिर क्योंकि स्वैपिंग की है ना मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हो, और फिर उस पर शॉर्ट बाई की परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू वाला पार्ट आ गया, क्योंकि की पर शॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो वो ऊपर आ जाना चाहिए, तो कायदे से ये आ नहीं रहा है। अगर आपको मैं ये एग्जीक्यूट करूं मैं दोबारा, कंट्रोल बी कंट्रोल डी, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, ये वर्ड काउंट। तो अगर मैं इसको वर्ड काउंट शॉर्टेड, वर्ड काउंट्स SORTED शॉर्टेड डॉट फॉर ईच इंटर, तो कायदे से मेरी शॉर्टिंग हो जानी चाहिए थी, ये हो नहीं रही। सॉरी, क्या हो गया। ये देख रहे हो, पंकज हडूप ऊपर आया, फिर पंकज सिंह आया, फिर 1 1 फिर 2, ऐसा क्यों हो रहा पर वो सर इंटीजर में या स्ट्रिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं भाई, शॉर्टिंग होनी चाहिए थी मेरी प्रॉपर्ली। कोई आंसर देगा? ये बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में सॉर्टिंग। अबे यार, बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहे हैं, या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो ना, मैं ये चाहता हूँ, या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, या तो ऐसे आए 6 5 2 1 1, या तो 1 1 1 2 5 6 ऐसे आए। ये ऐसे क्यों रिजल्ट दे रहा है? सर तो कुछ चीज ऑर्डर बाय की तरह लगानी पड़ेगी। वैल्यू पे अगर इसको एक कर बार रहे 1 बाय 1। हाँ सिमरन जी बोलिए। हमें बोल रहा था इसके लिए कुछ ऑर्डर बाय टाइप का कुछ लगाना पड़ेगा। अरे अच्छा, सॉर्टेड बाय की दिया हुआ है। सर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं वैल्यू पे। हाँ तो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में होगी, तो अगर वो इंटीजर की तरह ना ले तो सॉर्ट करेगा। भाई वो अपने आप इतना समझदार है, ये पता है, ये स्पार्क इतना समझदार है कि इसके पास ये इंटीजर वैल्यू आ रही है या स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। ये देखना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है ये इंट है। ये इसकी बहुत अच्छी फीचर है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है इसके पास इंटीजर आ रहा है कि स्ट्रिंग आ रहा है। ये हमारी तरफ बेवकूफ नहीं है और फ्रेमवर्कों की तरह की वहां हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम स्ट्रिंग देंगे या इंट देंगे। तुम इनमें डेटा दो, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इनकी बहुत अच्छा फीचर है स्पार्क का, कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते कि डेटा इनके पास स्ट्रिंग में है कि इंट में। तो हम लोग जो अब इंट इसका ये वाला पोर्शन की बन गया है, तो ये वाले पे शॉर्टिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं आ रही है ये शॉर्टिंग? सर यहाँ पे ये सफल्ड RDD32 ये कॉल कर रहा है क्या? सफल्ड RDD32 एट सॉर्टेड। अरे उसको भूल जा भाई, उससे क्यों कुछ लेने देने। वो बहुत सारे RDD के स्टेज बन रहे हैं। अगर तुम देखोगे RDD1 RDD2 RDD3 ऐसे बनते जाते हैं, RDD वैसे ही सफल बहुत बन जाते हैं इंटरनल में। ये क्यों नहीं आ रहा है, शॉर्टिंग क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम? कोई बताएगा? उसको मैं फिर अभी 200 रुपीज पास करूंगा अगर जिसने भी आंसर। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो पता चल जाएगा। ओके एनीवेज, अब मैं दोबारा एक बार डेटा रीड करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, डेटा रीड कर रहे थे, शुरू से चला रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है। अब इस बार शॉर्टिंग आएगी हमारी, ये सबसे पहला स्टेप था मेरा, था ना, ये data.txt पढ़ रहा था।
दोबारा मैंने मारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, चलो मैं अब पूरे स्टेप करता जा रहा हूँ। ये सबसे पहला स्टेप था जो अभी मैंने परफॉर्म किया है। यार ये शेल बंद तो ये मेरा सबसे पहला स्टेप था ना, जिसमें मैंने अपनी फाइल को रीड किया था डेटा डॉट। तो एक काम करता हूँ, हरी अप हरी अप। तो डायरेक्ट acyclic ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्शन विच ट्रांजिशन डेटा पार्टीशन स्टेट ए टू बी। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या होता है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्शन विच ट्रांजिशन डेटा पार्टीशन स्टेट फ्रॉम ए टू बी लेके आता है। असाइक्लिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट रिटर्न टू द ओल्डर पार्टीशन। अगर तुमने एक आरडीडी को दूसरी आरडीडी में कन्वर्ट कर दिया ना, दोबारा उसको ओल्ड उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये असाइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब घूमना, मतलब असाइक्लिक मतलब एक चीज, जैसे अगर मैंने क्या बोलते हैं चीनी से मतलब जैसे कि गन्ने से मैंने चीनी निकाल ली, तो अब ये थोड़ी ना चीनी से गन्ना बना दो, दैट इज कॉल्ड असाइक्लिक। तो ये मेरा सेशन खुला, तो अब मैं कोड को रन करता हूँ। तो सबसे पहला कोड यही था मेरा, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें ना 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप था मेरा। अब अगर मेरा दूसरा स्टेप देखा जाए, दूसरा स्टेप क्या था मेरा, दूसरा स्टेप था मेरा मैप वो करना, मतलब फ्लैट मैप परफॉर्म करना। तो ये फ्लैट मैप परफॉर्म हुआ मेरा दूसरा। अब तीसरा स्टेप था मेरा मैपिंग करना, सॉरी तीसरा स्टेप था मेरा फ्लैट मैप के बाद मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना था। तो मैंने कॉपी लिया, अपने कोड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये सब काम क्या कर रहा था, लोअर में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या था मेरा, सारे कोड को लोअर में कन्वर्ट किया उसने। फिर तीसरा स्टेप था कि मैपिंग करे 1 1 और रिड्यूस बाय की, ये वाला ऑपरेशन, रिजल्ट वाला पोर्शन हमने एक्टिवेट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक रिजल्ट आ गया था। अब इसके बाद ये लाइन कर रहे थे जो भी शॉर्टिंग का काम कर रही थी। पहले हमने क्या किया, रिजल्ट आ रहा था पंकज 6, तो हमने क्या किया, स्वैपिंग की, 6 को पहले लाया, पंकज को बाद में लाया, और उस पर की के बेसिस पे शॉर्टिंग कर दी। तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा इस लाइन को, सर उस टाइम पे मुझे लगता है वो कॉन्टेक्स्ट एक से ज़्यादा बन रहा था, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहा था, मतलब शॉर्ट नहीं हो पा रहा था। पार्टीशन में डेटा था तो वो ना ग्लोबल शॉर्टिंग नहीं कर रहा था, इस बार एक पार्टीशन में डेटा है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा रागनी। एक्चुअली में वो क्या कर रहा था, वो कर तो शॉर्टिंग सही रहा था, शॉर्टिंग सही कर रहा था, वो गलत नहीं कर रहा था शॉर्टिंग, लेकिन वो पार्टीशंस पे शॉर्टिंग कर रहा था, समझ रहे हो। इस बार मैंने एक सिंगल पार्टीशन बना दिया, उस बार वो अलग अलग पार्टीशन, 2 पार्टीशन बने थे, उन 2 पार्टीशनों में शॉर्टिंग कर रहा था। तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ये शॉर्टिंग हो नहीं रही है प्रॉपर्ली, शॉर्टिंग हो रही है, वो पार्टीशन लेवल पे हो रही है शॉर्टिंग। अब मैंने क्या किया, एक सिंगल पार्टीशन बनाया, एक सिंगल पार्टीशन पर मैं शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर मैं फॉर ईच करूं, तो आप देखो मेरी प्रॉपर्ली शॉर्टिंग हुई, 1 1 2 5 6 है। क्योंकि मेरा, अगर मैं अपनी आरडीडी का पार्टीशन देखूं कि मेरे कितने बने हैं, सिंगल पार्टीशन, उस टाइम भी शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन पार्टीशन लेवल पे हुई थी, उसने पार्टीशन लेवल पे शॉर्टिंग की थी। तो अगर मैं इसका गेट नम पार्टीशन करके देखूं तो मेरे नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं,
तो उस बार भी सही हुआ था, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं था। तो इस बार मेरा एक सिंगल पार्टीशन था, उस बार भी पार्टीशन हुआ था, वहां पे भी शॉर्टिंग हुई थी। तो वो शॉर्टिंग कर रहा था पार्टीशन लेवल पे, इसलिए आपको लग रहा था कि वो हो नहीं रहा। तो या तो आप अपना पार्टीशन का लेवल चेंज करते हो उसमें। अब देखो, हाँ, यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया कि भैया मेरे को 1 पार्टीशन चाहिए। अब जनरली अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 पार्टीशन देता, ठीक है, 10 पार्टीशन देता और मैं फिर सारा प्रोग्राम वैसे ही चलाता। अरे कहाँ चले गए? 10 पार्टीशन देता, तो मान लो कि फिर मैं कैसे सॉर्टिंग करता, ग्लोबल सॉर्टिंग। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है कि पता करना कि मान लो अभी तो मैंने एक्सप्लिसिटली एक पार्टीशन दे दिया, एक पार्टीशन मेरे लिए फायदेमंद भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं फिर पैरेललिज्म अचीव नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे को पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे हम अपने पार्टीशन को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ के आओगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्ट होंगे। तो आप लोग इनके बारे में पढ़ोगे कि मतलब हम कैसे पार्टीशनों को बढ़ा, अगर मान लो चलो ये 10 भी पार्टीशन नहीं दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर 5 बन रहे हैं, तो कैसे मैं एक सिंगल पार्टीशन बनाऊंगा या एक से ज्यादा पार्टीशन बनाऊंगा, ये पढ़ के आना आप लोग, ठीक है। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ कहाँ बना हुआ है, इसका पोर्ट नंबर कितना है, 41 ही है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, रिफ्रेश कर लेता हूँ 41 का। तो ये देखो, ये स्टेजेस बनी इसकी, देख रहे हो, स्टेज चीजों में हम लोग ने टेक्स्ट बनाया, फ्लैट मैप बनाया, फिर मैप बनाया, फिर मैप दोबारा शॉर्टिंग हुई, 2 बार की थी ना, एक बार मैप की वैल्यू के लिए बनाया था, एक मैप हमने उसके लिए बनाया था, एक बार लोअर केस के लिए किया था, एक मैप मैपिंग के लिए बनाया था। फिर रिड्यूस बाय की में दूसरे स्टेज में चले गया है। अगर हमारा कोड देखा जाए, पूरा कोड को देखा जाए, तो पहला क्या हो रहा था कि टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे थे, तो ये पहली स्टेज का ही पार्ट था, ये भी पहली स्टेज का पार्ट था फ्लैट मैप, क्योंकि हर एक लाइन को ले रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। फिर ये भी पहली ही स्टेज का पार्ट था। पहली स्टेज का पार्ट क्या बोलने का मतलब है मेरा, अगर आप ग्राफ को देखो तो ये पहली स्टेज में आ रहे हैं, टेक्स्ट फाइल रीड करना, फ्लैट मैप, मैप, ये सब पहली स्टेज में। लेकिन रिड्यूस बाय की को उसने दूसरी स्टेज में भेज दिया, फिर वहां अगेन मैप यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ शॉर्ट बाय की को अलग स्टेज में। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कितने स्टेजेस बनेंगे, क्या बनेंगे, और ये स्टेजेस चेंज कैसे हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? एनीवन, कोई गेस कर सकता है? नंबर ऑफ आउटपुट सर डिफरेंट हो रहा है, तो सर वो स्टेज चेंज हो जा रहा है। आउटपुट कहाँ से डिफरेंट? रिड्यूस आउटपुट फ्लैट मैप के केस में भी स्टेजेस बन जस्ट स्टॉप। फ्लैट मैप के केस में भी हम लोग हर लाइन को स्प्लिट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे भी हो जाना चाहिए था, हर एक लाइन के को स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट चेंज हो रहा है, तो फिर चेंज हो जाना चाहिए था यहाँ पे स्टेज। मैप क्या कर रहा है, ये लोअर केस में ला रहा है आउटपुट, अब आउटपुट चेंज हो रहा है, तो फिर ये भी अलग स्टेज में आना चाहिए था। सर हाँ रागनी, आप बताइए। यहाँ पर रिड्यूस बाय क्या नैरो से अगर हम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक न्यू स्टेज बन जाती है हमारी। एग्जैक्टली, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, वेरी गुड। तो एक्चुअली में होता क्या है भाई, ये स्टेजेस कैसे डिफाइन होती है कि कब हमारी कौन सी स्टेज चेंज होगी, नई स्टेज कैसे बनेगी, ये होता है हमारा 2 कंसेप्ट आते हैं, 2 कंसेप्ट आते हैं हमारे। जैसे आरडीडी में हम 2 टाइप के ऑपरेशन, एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे ही हमारे ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नैरो ट्रांसफॉर्मेशन और एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये 2 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है हमारा नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ यार, अपने एंड पे भी बहुत कुछ पढ़ के आओ, तभी आप लोगों को पता चलेगा, वरना आप सोच रहे हो जितना पढ़ रहे हो उतना। तो नैरो और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ नैरो के एग्जाम्पल कौन कौन से, वाइड के कौन कौन से। नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 टाइप्स के, नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये खोल लेते हैं इमेज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपके 3 पार्टीशन बने ना किसी आरटीडी के, अब उन 3 पार्टीशनों पे आपका कौन सा, अगर मैप या फ्लैट मैप या ये कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, ये सब नैरो के पार्ट है। इसमें क्या होता है, सफलिंग नहीं होती है,
तो एक तरीके से कह सकते हो कि नैरो ट्रांसफॉर्मेशन आपका ना कॉस्टली ऑपरेशन नहीं है, मतलब सस्ता ऑपरेशन है। अगर आप मैप, फ्लैट मैप, ये सारे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो अपने आरडीडी में, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें देखो पार्टीशन लेवल पे ही हो रहा है। इस पार्टीशन में क्या, मान लो यहाँ पे लाइन थी, हाय माय नेम इज पंकज, मैंने इसमें फ्लैट मैप लगा दिया, तो क्या करेगा, उस लाइन को क्या कर देगा, सारे वर्डों को स्पेस के बेसिस पे तोड़ देगा, हाय कॉमा पंकज कॉमा ब्लैक कॉमा कॉमा। मैप भी क्या कर रहा था, हर एक वर्ड की एक मैपिंग कर रहा था, तो उसमें सफलिंग वफलिंग कुछ नहीं हो रहा था। अगर वाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो जैसे मैं रिड्यूस बाई की कर रहा था, अब क्या होगा कि पंकज नाम का वर्ड यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो मेरे को रिड्यूस बाई की, मेरे को की के बेसिस पे वो सारा लेके आना होगा, तो यहाँ से भी पी आएगा, यहाँ से भी पी आएगा, यहाँ से भी पी आएगा। तो जैसे ही हम कोई वाई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारी स्टेजेस चेंज हो जाती है। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा था। अब उसके बाद दोबारा हम कोई नैरो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो उसी स्टेज का पार्ट होगा, वो कोई डिफरेंट स्टेज का पार्ट नहीं होगा। तो हमारे साथ भी यहीं पे यही हो रहा है कि हम लोग जब तक नैरो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे थे, वो एक स्टेज का पार्ट था। जैसे ही हम लोगों ने कोई वाइड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, तो एक नई स्टेज बना दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में कि डैक के अंदर पहला तो आरडीडी समझ में आ गया कि आरडीडी क्या होता है, कि आरडीडी एक आपका फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब स्पार्क का, और दो टाइप्स ऑफ आरडीडी क्रिएट करने के तरीके, और आरडीडी पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन बनाते हैं। फिर डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ होता है, डैग इज अ सीक्वेंस, और डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, इसमें स्टेजेस होती हैं, देख रहे हो, मल्टी जीरो स्टेज एग्जीक्यूशन मॉडल एंड प्रोवाइड परफॉर्मेंस। अब इस बार का आर्किटेक्चर देखते हैं, ओवरव्यू क्या है। तो अभी इससे पता चला कि स्टेजेस कैसे चेंज हो रही है हमारी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मार रहे हैं, वाइड मार रहे हैं कि नैरो मार रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, मास्टर डेमन है और वर्कर डेमन है, तो जिसको स्लेव बोलते हैं। तो ये आप ऊपर फिगर देख रहे थे, सारे वर्कर नोडों में हमारे सारे एग्जीक्यूटर चलते हैं, और एक वर्कर नोड में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर चल सकते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ड्राइवर है, जहां हमारा ये मास्टर नोड है, जहां पे हमारा ड्राइवर और ड्राइवर सब कुछ रखा हुआ है। तो इन स्पार्क क्लस्टर सिंगल मास्टर, ये भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, फॉलो करता है। द ड्राइवर एंड द एग्जीक्यूटर रन देयर इंडिविजुअल जावा प्रोसेस एंड यूजर कैन रन देम ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल स्पार्क क्लस्टर इन सेपरेट मशीन, ब्ला ब्ला। यूजर अपना अलग चला सकता है। तो रोल ऑफ द ड्राइवर, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, ड्राइवर का रोल क्या है। तो अभी ये आप जो देख रहे थे, यहाँ ड्राइवर होता है आपका। तो ड्राइवर का क्या रोल करता है, तो ड्राइवर क्या होता है, डेली लाइफ में आपका कार का ड्राइवर होता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राइवर, जो आपकी एप्लीकेशन को ड्राइव कर रहा होगा। आपने मान लो ये पूरी एप्लीकेशन बनाई, अभी आपने यहाँ पे देखा, हमने एक वर्ड काउंट की एप्लीकेशन बनाई, इसमें ये पूरी वर्ड काउंट की एप्लीकेशन थी। अब इस एप्लीकेशन को मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट कैसे कर रहा था, स्पार्क सबमिट, याद है, स्पार्क सबमिट के थ्रू हम कोड को सबमिट करते हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन सबसे पहले सबमिट कर दी, तो ड्राइवर मेरी एप्लीकेशन को ड्राइव करेगा। तो ड्राइवर का रोल क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को ड्राइव करना। सो स्पार्क ड्राइवर मास्टर नोड ऑफ द, मतलब मास्टर नोड में होती है, जो ये बोले तो यहाँ पे होता है आपका ड्राइवर। इसका काम क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट एंड द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क शेल। ये स्पार्क शेल का या स्काला, पाइथन, आर, इन सब का क्या है, एक एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है। तो द ड्राइवर प्रोग्राम रन्स द मेन फंक्शन। अब इस कोड में जो मेन फंक्शन है, चाहे वो पाइथन का हो चाहे स्काला का हो, ये जो मेन फंक्शन है डेफ मेन से बना हुआ है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा, शनि को पढ़ा होगा तो उसने समझ गया होगा कि मेन फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। सिंगलटन क्लासेस, सिंगलटन सब समझ में आ रहा होगा। तो ये मेन फंक्शन को ड्राइव करना होता है। सो मेन फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज द प्लेस वेयर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। बार बार कल से बता रहा हूं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ एनी स्पार्क एप्लीकेशन। तो ड्राइवर का काम क्या होता है, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो स्पार्क में, तो क्या करता है ड्राइवर, सबसे पहला वो काम क्या करता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करता है, एससी। इसको जो लॉन्च करने का काम होता है वो ड्राइवर का काम होता है, क्योंकि भैया यही इसी एससी के थ्रू आप स्पार्क की फंक्शनैलिटी सबको एक्सेस कर सकते हो। तो ड्राइवर का काम होता है आपके स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को लॉन्च करना। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन स्पार्क सबमिट के थ्रू सबमिट करते हो, तो फिर स्पार्क ड्राइवर कंटेन वेरियस कंपोनेंट।
ये बाद में बताऊंगा कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, डैग शेड्यूलर, टास्क शेड्यूलर, बैकएंड शेड्यूलर, बॉक्स लोडर, ये सारा एक्टिविटी इसका ही काम होता है देखना है स्पार्क ड्राइवर का कि आपका डैग बन रहा है। जो अभी आपको मैं यहाँ ग्राफ दिखा रहा था ना, ये देखो, जब यहाँ पे आप डैग विजुअलाइजेशन में आओगे ना, इवेंट में जाओ, कहाँ गए यार वो डैग शेड्यूलर, एक मिनट, जॉस में गए हम लोग, फॉर ईच में गए, इवेंट डैग विजुअलाइजेशन, यहाँ पे तो डैग है, कंप्लीटेड स्टेज, इवेंट कंप्लीटेड स्टेज, ये थे ये कहाँ से एक मिनट, स्टोरेज देखो, यहाँ पे आपके कोर वोर्स तो चल रहे हैं 20 जो भी चल रहा है यार, कहाँ देखे थे मैंने डैक्स लोडर शेड्यूलर, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, डैक्स शेड्यूलर यार, जस्ट वेट, मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा, I'll सर्च इट। तो मेन काम क्या होता है कि स्पार्क ड्राइवर का काम क्या है, ये जो भी डैग शेड्यूलर ये सब है ना, लाइक ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ स्पार्क यूजर कोड इनटू अ एक्चुअल स्पार्क जॉब एग्जीक्यूटर ऑन द क्लस्टर। मतलब स्पार्क ड्राइवर कंटेन वेरियस कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट होते हैं ब्लॉक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्पार्क आपका कोड है ना उसको एक्चुअल स्पार्क जॉब एग्जीक्यूट ऑन द क्लस्टर, एग्जीक्यूट करवाते हैं आपके कोड को क्लस्टर में, इन सब की मदद से। So the driver program that run on the master node of the Spark cluster schedule the job execution and negotiate with the cluster manager। तो ये क्या करता है, ड्राइवर प्रोग्रामिंग क्या होता है आपका, मतलब मास्टर नोड जो होता है स्पार्क क्लस्टर शेड्यूल करता है जॉब एग्जीक्यूशन एंड नेगोशिएट द विद द क्लस्टर मैनेजर। ये जो जॉब आपने सबमिट कर रहे हैं ना, तो यही ड्राइवर इससे कम्युनिकेट करता है क्लस्टर मैनेजर से, बोलता है कि भैया मेरी एक एप्लीकेशन है वर्ड काउंट की, मेरे को इतने इतने कोर चाहिए और ये मदद चाहिए, तो ये यही क्लस्टर मैनेजर से नेगोशिएट करता है कि इतने इतने एग्जीक्यूटर, ये सब कुछ जो भी करना है मेरे को, ये सब यही डिस्कस करता है ड्राइवर। इट ट्रांसलेट आरडीडी इनटू एग्जीक्यूशन का ग्राफ। आपने देखा है ये जो हमने आरडीडी बनाई है, ये देख रहे हो जितनी भी बन रही है आरडीडीज, ये इनको ये एग्जीक्यूशन ग्राफ में कन्वर्ट करता है। ग्राफ जो मैं बता रहा हूँ डैग में कन्वर्ट करता है। तो द एग्जीक्यूशन ग्राफ एंड स्प्लिट द ग्राफ इनटू मल्टीपल स्टेजेस। अभी आपने देखा हमारा ग्राफ बहुत सारे स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया था, तो ये सब ड्राइवर देख रहा है। तो ड्राइवर स्टोर द मेटा डेटा अबाउट ऑल द रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट एंड देयर पार्टीशन। मतलब ये इनका मेटा डेटा भी स्टोर करके रखता है, जितनी भी आरडीडीज बन रही है, जितने भी पार्टीशन बन रहे हैं, सबका मेटा डेटा बन रहा है। Cockpit of the job and task execution driver program convert the user application into a smaller execution unit task। ये क्या कर रहा है, आप ही के प्रोग्राम जो एप्लीकेशन इतनी बड़ी है ना, इनको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर रहा है, और टास्क आर देन एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटर, और वो टास्क एग्जीक्यूट किए जाते हैं एग्जीक्यूटर द्वारा, द वर्क प्रोसेस विच रन द इंडिविजुअल टास्क। तो क्या होता है आपका काम, ये आपका ड्राइवर है। तो ड्राइवर आपका, आपने एप्लीकेशन सबमिट की, ड्राइवर आपकी एप्लीकेशन में सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को लॉन्च करेगा। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप आरडीडीज बना सकते हो। अभी तक आपने पढ़ा है कि हम आरडीडीज बना सकते हैं, और आरडीडीज के क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, आपको भी पता है, ये अभी आप पढ़ते हैं। अब आरडीडीज बनते हैं, आरडीडीज के क्या बनेंगे, ग्राफ में कन्वर्ट होते हैं। ये लॉजिकल ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे पेग में होता था, इसमें भी ग्राफ्स का रोल है, डायरेक्ट आसाइक्लिक। तो ये ग्राफ के अंदर आपके बनते हैं स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस बनते हैं, हर एक स्टेज अपने में एक टास्क है, और ये टास्क आपके एग्जीक्यूटर्स में रन होते हैं। ये सारे टास्क आपके एग्जीक्यूटर्स में रन होते हैं। अगर आपके 10 टास्क बने तो आपके 10 एग्जीक्यूटर लॉन्च हो जाएंगे। ये सारे टास्क उन एग्जीक्यूटरों में रन होते हैं, समझ रहे हो। तो आपके
जो भी टास्क होते हैं एग्जीक्यूटर में। तो अब आपसे कोई आर्किटेक्चर पूछेगा तो आप फिंगर टिप्स में बना सकते हो कि आप बोलोगे हमारे पास अगर कोई सपोज वी हैव अ यूजर एप्लीकेशन, इफ वी सबमिट अ यूजर एप्लीकेशन ऑन अ master node, so it so first of all driver will create a spark context, spark context launch होगा तो RDDs बनेंगे, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की मदद से RDDs बनेंगे, RDDs की मदद से ग्राफ्स बनेंगे, ग्राफ्स के अंदर स्टेजेस होती है, हर एक स्टेज अपने में एक टास्क है और ये टास्क ही हम जाके जितनी भी वर्कर नोड होती है उनके एग्जीक्यूटर में इनको लॉन्च करते हैं। ये सारा का सारा काम होता है और ये तब तक ये टास्क आपके लॉन्च नहीं होंगे जब तक आप इनमें एक फाइनल एक्शन ना परफॉर्म करो, क्योंकि लेजी एवल्यूट होता है। तो यही बताना चाह रहा है कि ये सारा काम ड्राइवर की अभी फंक्शनैलिटी बता रहा है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जहां अपनी मॉनिटर कर सकते हैं, ड्राइवर एक्सपोज द इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग स्पार्क एप्लीकेशन ऑन वेब यूआई। अब रोल ऑफ एग्जीक्यूटर इन स्पार्क आर्किटेक्चर, अब रोल ऑफ एग्जीक्यूटर का क्या काम है जो कि वर्कर नोड्स में सारे के सारे। So executor is distributed agent responsible for execution of task. So every Spark application has its own executor process. मैंने बोला ना हर एक स्पार्क एप्लीकेशन अपने एक एग्जीक्यूट प्रोसेस पे चलता है। तो एग्जीक्यूटर यूजुअली रन ऑन एंटायर लाइफ टाइम ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन। जब तक उस स्पार्क की एप्लीकेशन चल रही है ना तब तक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे ये आया था ना, ये 404 नोड पे चल रहा था, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल C और Y कर दिया, ये सेशन ओवर हो गया मेरा, मान लो ये सेशन मेरा ओवर हो गया। तो आप देखोगे 404 ये वाला है ना 404, ये भी बंद हो जाएगा अपने आप ही। रिफ्रेश करूंगा ना बंद, क्योंकि इसका सेशन खत्म हो चुका है। तो कोई भी एप्लीकेशन तब तक अलाइव रहती है जब तक उसका सेशन है, जब तक वो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे वो यही कहने वाला है कि एग्जीक्यूटर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। एग्जीक्यूटर में ही सारे टास्क आपके लॉन्च होते हैं। टास्क किससे बनते हैं? शेड्यूलर से, उससे बनते हैं, टैग से। मतलब शेड्यूलर स्टेजेस से बनते हैं, स्टेजेस बनते हैं ग्राफ से, ग्राफ किससे बनता है? RDD से बनता है। एवरी स्पार्क एप्लीकेशन हैज इट्स ओन एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर यूजुअली रन ऑन द एंटायर लाइफ टाइम, तब तक एग्जीक्यूटर चलते रहेंगे, मतलब जब तक वो एप्लीकेशन है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टैटिक एलोकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज स्टैटिक एलोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटर। तो आप बताओगे किसी भी एप्लीकेशन के टाइम पे जो एग्जीक्यूटर बन जाते हैं ना वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक वो एप्लीकेशन अलाइव रहती है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैटिक एलोकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर। However, user can also opt for dynamic allocation of executor, wherein they can add or remove Spark executor dynamically to match the overall workload। भाई ये चीज मेरे को ना 5 या 6 लेक्चर में बताना कि सर डायनेमिक एलोकेशन आपको पढ़ाना है एग्जीक्यूटर का, ये कैसे अचीव किया जाता है। अभी मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है ना तो मेरी वो स्टैटिक एलोकेशन है, मतलब अगर मान लो उस एप्लीकेशन के लिए 5 एग्जीक्यूटर लॉन्च हो गए तो हो गए। अब अगर मेरे को डायनेमिक बनाना है कि भाई मेरी ना अकॉर्डिंग टू डेटा के अकॉर्डिंग मेरे एग्जीक्यूटर बढ़ भी जाए और घट भी जाए, मेरा साथ कुछ ऐसा हो जाए, ये चीज कैसे परफॉर्म करेंगे? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये देखता हूं मैं 3 या 4 दिन में। आप लोग अगर कोई ढूंढ के लाता है और मेरे को पर्सनली बताता है इसका आंसर, मैं समझ जाऊंगा आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से स्पार्क। ये वाला डायनेमिक एलोकेशन का मैं आप लोगों को सिर्फ 4 दिन का मौका दे रहा हूँ। 4 दिन के अंदर आप लोग मेरे को बताओगे डायनेमिक एलोकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने एंड में पढ़ोगे। इंटरव्यू का सबसे हॉट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आपने कभी डायनेमिक एलोकेशन किया? डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटर मतलब खुद से एग्जीक्यूटर बढ़ जाए या कम हो जाए। स्टार्टिंग में तो फिक्स है, एक एप्लीकेशन के लिए 10 एग्जीक्यूटर बने तो 10 ही चलेंगे, ना कम कर सकते हो ना ज्यादा, जब तक वो एप्लीकेशन। अब कोई एप्लीकेशन साला 5 घंटे के लिए चल रही तो 5 घंटे के लिए मेरे 10 एग्जीक्यूटर बंद हो गए भाई, मतलब लॉक्ड हो गए, पैक्ड हो गए कि इस एप्लीकेशन के लिए। अब मान लो मेरी कोई एक हाई प्रायोरिटी की एप्लीकेशन है, उसको रन करना चाह रहा हूँ और यहाँ इसने 10 एग्जीक्यूटर खाली है, 2 ही बचे हैं मेरे पास एग्जीक्यूटर, तो उस एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करूँ? तो या तो मैं अपनी एप्लीकेशन को ऐसा करूं कि मैं डायनेमिक करूं कि नीड के अकॉर्डिंग हो मेरे एग्जीक्यूटर। सो एग्जीक्यूटर परफॉर्म ऑल द डेटा प्रोसेसिंग, सारा प्रोसेसिंग डेटा का एग्जीक्यूटर में होता है। रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा टू द एक्सटर्नल, डेटा को रीड करना राइट करना, एक्सटर्नल सोर्स में से रीड करना राइट करना, सारा एग्जीक्यूटर का काम है। सो एग्जीक्यूटर स्टोर द कंप्यूटेशन रिजल्ट डेटा इन अ मेमोरी एंड कैच आर अ हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब हर जगह स्टोर कर सकते हो। एग्जीक्यूटर स्टोर द कंप्यूटेशन रिजल्ट डेटा इन अ मेमोरी, अभी रैम पे भी स्टोर कर सकते हो, कैचे भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रैम पे ही होता है, अभी आपकी प्रोसेसिंग जब चलती है सारा डेटा रैम पे ही स्टोर होता है।
इंटरेक्ट विद द स्टोरेज सिस्टम, ये सारा स्टोरेज से इंटरेक्ट भी करता है कि मतलब डेटा उठाना क्या है। अब रोल ऑफ क्लस्टर मैनेजर, अब बीच में ये था ना क्लस्टर मैनेजर, जैसे मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, यान, मीजोज और स्टैंड अलोन। अभी आप लोग स्टैंड अलोन में काम कर रहे हो और हम लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो यान पे करते हैं। सो एन एक्सटर्नल सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग रिसोर्स फ्रॉम द। अब जैसे कि ना ये आपने फिगर बना लिया, अभी आपका क्या बना, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, ड्राइवर ने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लॉन्च किया, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट से हमने आरडीडीज बनाना स्टार्ट कर दी, आरडीडीज बनी तो ग्राफ्स बने, ग्राफ बने तो स्टेजेस बने, स्टेजेस बने तो टास्क बने, टास्क बने तो जितने टास्क बने, अब इन टास्क को हमको एग्जीक्यूटर में लॉन्च करना है। अभी मेरे 10 टास्क बन गए समझ लो, तो मैं क्लस्टर मैनेजर से कम्युनिकेट करूंगा। अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, सोचो अभी तक ये यूज में नहीं आया, अभी मेरे बस लॉन्च हुए हैं 10 टास्क, और ये 10 टास्क तभी लॉन्च होंगे जब इस पे फाइनली आप एक्शन मारोगे। तो आप मेरी कितनी भी एप्लीकेशन देख रहे होगे ना, ये देखो मैंने सारी एप्लीकेशन चलाई, ये बुक रीड किया, ब्ला ब्ला, लास्ट में मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया, तब जाके मेरा रिजल्ट आया। तो ये कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक आपका एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट वी कॉल लेजी एवोल्यूशन। सो कोई पूछेगा अगर हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो तब उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, वो डैग बना रहा है, वो स्टेजेस बना रहा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है हमारे क्लस्टर में, जब तक हम उस पर एक्शन ना परफॉर्म करें। So there are 3 different types of cluster manager. Spark application can leverage the allocation and deallocation of various physical resources such as memory for client, Spark job, CPU memory. So Hadoop, Yarn, Apache Mesos and simple standalone Spark cluster. आप लोग मेरे को Yarn के थ्रू करके दिखाना, मैं तो अभी standalone ही बता रहा हूँ यहाँ सारा। So choosing a cluster manager for any Spark application depend on the goal of the application because all cluster manager provide a different set of scheduling capabilities. सबका अपना अपना फंडा है। To get started with Apache Spark, the standalone cluster manager is easiest one to use when developing a new Spark application. So what happened when a Spark job submitted? क्या होता है जब हम Spark में job submit करते हैं ना, Spark submit और फिर application का नाम। So when a client submit a Spark user application code, the driver implicit convert the code containing the transformation and action into a logical direct acyclic graph. समझ में आ गया होगा? तो ड्राइवर का क्या काम होता है, मतलब सबमिट करते हो आप एप्लीकेशन को, ये कन्वर्ट करता है जो आपका कोड होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन है, उनको एक लॉजिकल डायरेक्ट acyclic ग्राफ बनाता है, डैग बनाता है। At this stage, the driver program also performs certain optimization like pipeline transformation. देखो ड्राइवर और क्या काम कर रहा है, सारा काम ड्राइवर देख रहा है। At this stage, the driver program also performs certain optimization. अब internally भी optimize करता है, like pipeline transformation, and then it convert into a logical DAG into a physical execution plan with a set of stages. मतलब इसमें stages बना रहा है सारा, ये internally हो रहा है सारा काम भाई। After creating a physical execution plan, जब आपका physical execution plan बन जाता है ना, it create a small physical unit referred to as task under each stage. हर stage पर एक आपका क्या बन रहा है, टास्क बन रहा है ना, अंडर ईच स्टेज। तो बोल रहा है ना कि इट क्रिएट स्मॉल फिजिकल एग्जीक्यूशन यूनिट रिफर्ड टू एज टास्क अंडर ईच स्टेज एंड देन टास्क आर बंडल टू सेंड टू द स्पार्क क्लस्टर। अब इनको बंडल किया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं ये 10 टास्क बन गए, तो अब ये क्लस्टर मैनेजर के थ्रू इन पे फेंका जाता है रन करने के लिए, टू सेंड द स्पार्क क्लस्टर। द ड्राइवर प्रोग्राम देन टॉक्स टू द क्लस्टर मैनेजर। आपका ड्राइवर प्रोग्राम क्लस्टर मैनेजर से बात कर रहा है, भैया एंड नेगोशिएट फॉर द रिसोर्सेज, जैसे हम यान से करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अभी तो हम स्टैंड अलोन पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ अगर हमें हडूप में चलाना होगा तो हम यान से करेंगे। यान रिसोर्स नेगोशिएटर है ना आपका, कि हम भैया हमारी इतनी 10 टास्क हैं, इनको इतना इतना काम चाहिए, तो भैया दोगे हमें इतनी रैम, इतनी सीपीयू, जो भी। तो क्लस्टर मैनेजर देन लॉन्चेस executor on the worker node on behalf of the driver. The cluster manager then launches executor on the worker node on the behalf of the driver. So cluster manager launch करता है executor on the worker node on behalf of the driver. मतलब वहाँ पे executor launch हो गए ना cluster manager के कहने पे और driver के कहने पे cluster manager ने launch कर दिया worker node में executor. तो at this point the driver send task to the cluster manager based on the data placement. अब डेटा लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट याद होगा,
आपके वर्कर नोड एग्जीक्यूटर वहीं बने जहां डेटा हो अवेलेबल, समझ रहे हो? तो एट दिस पॉइंट द ड्राइवर सेंड टास्क टू द क्लस्टर मैनेजर बेस्ड ऑन द डेटा प्लेसमेंट, जहां जहां डेटा है वहीं पे टास्क बनाए। बिफोर एग्जीक्यूटर बीइंग एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूटर लॉन्च होने से दे रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द ड्राइवर प्रोग्राम सो दैट ड्राइवर हैज होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटर। तो ये एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होने से पहले अपने ड्राइवर मतलब अपने रजिस्टर कर लेते हैं अपने मतलब ड्राइवर प्रोग्राम के साथ कि हम लोग कि ड्राइवर को पता चलता रहे कि उनकी एप्लीकेशन का क्या स्टेज है। तभी मैंने बताया ना कि आप वहां देख सकते हो कि कितने कितने स्टेज में आपके आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर देख सकते हो, 20 30 जो भी। तो नाउ एग्जीक्यूटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वेरियस टास्क असाइन बाय द ड्राइवर। अब जो टास्क असाइन हुए ना वो होंगे at the point of the time when the Spark application is running, the driver program will monitor the set of executor that run, and driver program in the Spark architecture also schedule future tasks based on the data placement by tracking the location of cache data when driver अब यहाँ पे आ रहा है now executor start executing the task by the driver program at the point time when the Spark application is running, the driver program will monitor the set of executor that run. साथ में ड्राइवर ये भी देखता है कितने एग्जीक्यूटर रन हो रहे हैं। द ड्राइवर प्रोग्राम इन द स्पार्क आर्किटेक्चर आल्सो शेड्यूल फ्यूचर टास्क बेस्ड ऑन द डेटा प्लेसमेंट बाय ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ कैचे डेटा। अब जैसे कि कुछ कैचे किया होगा डेटा, अब उस पर फर्दर कुछ और काम हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो और जगह अपने एग्जीक्यूटर लॉन्च करेगा, वहां पे उस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। ये भी सारा ड्राइवर देख रहा है। तो व्हेन ड्राइवर प्रोग्राम मेन मेथड एग्जिस्ट when it is called to stop the method of spark context, so it will terminate all the executor and release the। तो आप देख रहोगे हमारी spark एप्लीकेशन की लास्ट में ना हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जनरली टर्मिनेट स्टॉप कर देते हैं। ये एक अच्छी हैबिट होती है। इससे क्या होता है कि हमारी यहाँ पे मैं अपनी इस जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने बनाया है डेफ में SC लिखा है, तो मैं SC.stop लिख दूं ना, इससे क्या होगा इस एप्लीकेशन को जितने भी एग्जीक्यूटर अलॉट हुए ना वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप ये एक्टिविटी किया करो कि लिखा करो स्टॉप मेथड ऑफ द स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। तो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पार्क प्रोग्राम एट अ हायर लेवल इज RDD आर क्रिएटेड, मतलब RDD बनती है फ्रॉम द इनपुट डेटा एंड न्यू RDDs आर ड्राइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग RDD यूजिंग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर ईच एन एक्शन इज परफॉर्म ऑन द डेटा in any Spark program, DAG operation are created by default। ये by default create होता है, आप नहीं है। Whenever the driver runs the Spark DAG will convert into a physical execution plan। अब ये बता रहे कि Spark की एप्लीकेशन को लॉन्च कैसे किया जाता है, तो Spark सबमिट के थ्रू किया जाता है। तो ये सारा का सारा था। आई होप कि एक बार मैं फिर से क्विकली इसको रिवाइज कर लेता हूँ। आपने एप्लीकेशन सबमिट की, ड्राइवर है, ड्राइवर आपका स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करेगा जिससे आप RDDs जो भी उसमें RDDs और जितने भी ऑपरेशंस हैं लाइक एक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बेसिस पे आपके डैग बनेंगे। उन डैग्स के अंदर बहुत सारे स्टेजेस होंगे। स्टेजेस कैसे बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नैरो और वाइड। तो अगर हम कोई भी वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं स्टेजेस चेंज हो जाएंगे। स्टेजेस बनते हैं, ये हर एक स्टेज अपने में एक टास्क है। अब ये टास्क को बंडल करके ड्राइवर क्लस्टर मैनेजर से बोलता है भैया ये सब टास्क है, इनको लॉन्च करना है और इनका डेटा यहाँ रखा हुआ है। तो क्लस्टर मैनेजर वहाँ उन वर्कर नोडों में वो एग्जीक्यूटरों में आपका टास्क को लॉन्च कर देगा, आपके टास्क को लॉन्च कर देगा। और साथ में ये सारे एग्जीक्यूटर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ड्राइवर से एसोसिएट होते हैं कि ड्राइवर उनको मॉनिटर भी कर सके पैरेलली, कि देख सके कि कितना हो गया क्या हो गया। दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ योर स्पार्क एप्लीकेशन। So we have 7 minutes. If you have any question, any doubt, you can ask me right now. Now it's on. Abhishek, Gaurav, Ashish, Rakshit, Shani, anyone? Yeah. Yes. I think you are on mute यार। तो यो डेटा टाइप में कहीं यू का कोई ये नहीं दिया था कि यू क्यों लग रहा है। कौन पूछ रहा है मुझे? गौरव भाई ढूंढो ना यार, क्यों नहीं ढूंढ रहे? मतलब यार तुम लोग हर चीज अब धीमे धीमे डेटा टाइप पर गया, थोड़ा सा पढ़ो ना यार, क्योंकि देखो मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को कौन सा बड़ी बात है, लेकिन आप लोग
अपने एंड पे नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपका फॉल बैक है। अब मैं आपको आज जो टास्क दूंगा अगर 3 दिन में नहीं हुआ ना, लिटरली कह रहा हूँ भाई यार बेकार है फिर, मतलब तुम लोग स्टॉप कर दो फालतू को आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग मैं मेरे दिए हुए टास्क मेरे से करवा रहे हो तो फिर टास्क देने का कोई मतलब ही नहीं। मैं आप लोगों को कोई टास्क ही नहीं दूंगा। मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ और मैं लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा ना कि किसी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, मैं खुद ही बोल दूंगा कि भैया यार मत ही पढ़ो। मतलब मैं खुद ही देखो यार, मेरे को कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है, मैं अपने ब्रशअप के लिए करता हूँ। मैं पढ़ाना मेरा एक हॉबी है, अपने ब्रशअप रहे मेरा ये चीज़ें। मुझको लग रहा है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा भाई, या तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा या तो स्काइप से निकाल दूंगा। तो आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करो भाई। तो वो यू ढूंढो, मैं तो बता ही दूंगा भाई वो यू है ही क्या, किस पर्पस के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डिबगिंग करो। देखो यार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना तो तुम इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे, जितना पैकेज मांगोगे उतना मुंह फाड़ के तुम्हें पैकेज देगा कंपनी। लेकिन जब वहां पे सर्वाइवल की बात आएगी ना, जब वो तुम्हें टास्क देंगे ये देंगे, तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी भाई। तो मैं तुम्हारी हैबिट बनाना चाहता हूँ कि अपनी डिबगिंग, अपने कोड के एरर, ये सब डिबग करना खुद सीखो भाई। हर चीज का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छे पैकेज में जाओ, साथ में ये जा रहा हूँ कि वहाँ सर्वाइव करना सीखो। आपको कल के दिन टास्क, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस बंदे को इतनी नॉलेज होगी जिसने क्रैक स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ। अभी आर्किटेक्चर से कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। समझ में आया आर्किटेक्चर क्या है? एक पिक्चर बैठा होगा माइंड में कि हमने अपनी एक वर्ड स्पार्क सबमिट से एप्लीकेशन सबमिट की, तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लॉन्च किया हमारे ड्राइवर ने, फिर उससे उसके अंदर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन है उनसे डैग बना, डैग से स्टेजेस बनी, स्टेजेस बनती हैं कैसा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रहा है। अब वो स्टेजेस अपने में टास्क है, फिर हमारा ड्राइवर क्लस्टर मैनेजर से बोल रहा है कि भैया ये टास्क है मेरे, तो अब जहाँ डेटा होगा वहीं पे आपके वर्कर नोडों में एग्जीक्यूटर्स बन रहे होंगे। एग्जीक्यूटर्स में भी 2 चीजें हमने पढ़ी थी, स्टैटिक एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन तो पता चल गया था कि मान लो अगर 10 एग्जीक्यूटर बन गए तो जो एप्लीकेशन की लाइफ टाइम है तब तक वो 10 रहेंगे। डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, हमें टास्क मिला है। पिक्चर बना माइंड में, हाँ या ना बताना बस। ये सब पिक्चर तुम्हारा है, ठीक है। और साथ में आप लोग देख रहे होगे कि ये हम लोगों ने सारा का सारा चला। आज हम लोग ने वेब यूआई भी मॉनिटरिंग की, मैं बताना ही भूल गया। आज हम लोगों ने पूरा वेब यूआई देखा, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, कौन कितना चला। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पूरा, या हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा नहीं था, है ना। सिमरन कोई डाउट, कोई क्वेरी? समझ में आया आज का सेशन? जी समझ में आया, लेकिन मैं एक और बार डिटेल में मतलब ये पूरा वीडियो देख लूंगा जल्दी से, तो मतलब थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, पंकज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। Okay, first of all, guys, I'll stop this video. We are doing a casual conversation, and please watch this video again. I'm gonna stop this one. Thank you for watching this one, and bye bye. I'm stopping this.